There are a lot of things are going on in the world. इस संसार में बहुत कुछ हो रहा है. Every time they try to mix with the word of God. हर समय वे परमेश्वर के वचन के साथ मिलावट करने के लिए कोशिश करते हैं. Don't put down the value of anointing. अभिषेक के मूल्य को नीचे ना दबाएं. Anointing has a much valuable word. अभिषेक का एक बहुमूल्य शब्द है. Honorable word. आदर की योग्य शब्द. We should honor him. हम उससे आदर करना चाहिए. What is the meaning of anointing? अभिषेक का अर्थ क्या है? The Greek word is called charisma. यूनानी शब्द में इसको क्रिस्मा कहते It हैं. has a valuable word. इसका एक बहुमूल्य शब्द है. God used in the Old Testament to anoint kings परमेश्वर पुराना नियम में राजाओं को अभिषेक किया and kingly anointing, और राजा अभिषेक prophetical anointing, और भविष्यवक्ता का अभिषेक and then the priestly anointing, और याजक की अभिषेक priesthood anointing. और याजकत्व की अभिषेक. Valuable biblical anointing is different. बाइबल की अभिषेक अलग है. Anointing will break the yoke. The power of God will come upon you and you'll see different. When the anointing comes, you'll live different. अभिषेक जुए को तोड़ देगा. परमेश्वर की शक्ति आपके पर आएगी. आप कुछ अलग दिखाई देंगे. आप अलग तरीका से जिएंगे. So many people are so much easily they're talking about the anointing. बहुत सारे लोग बहुत आसानी से अभिषेक के बारे में बात कर रहे हैं. Have you seen the milk anointing? क्या आप दूध की अभिषेक को देखे हैं? They take milk and they pour on their head. वे दूध लेके अपने सिर के पर उंडेल देते हैं. That's the milk anointing. ये दूध के अभिषेक है. People they take mic and they non-stop they will be speaking. Why brother why are you speaking like that? They say mic anointing. कई लोग माइक पकड़ के बिना रुके बात करेंगे. अगर आप पूछेंगे ऐसा क्यों बात कर रहे हैं भाई आप, तो वो कहता है ये माइक अभिषेक है. And one more person, runaway anointing. और एक व्यक्ति है उसके पास भाग जाने की अभिषेक है. I asked that what is that? मैंने पूछा ये क्या है? His wife told me, उसकी पत्नी मुझसे बोली, whenever this running away anointing comes, my husband runs away with somebody. जब भी ये भाग जाने की अभिषेक आता है तो मेरे पति किसी और के साथ भाग जाता है. And after 3 months we will be searching for him. 3 महीना तक उसको ढूंढते रहते हैं. 3 months where is my husband? Where is my husband? 3 महीना तक मेरे पति कहाँ है, मेरे पति कहाँ है करके ढूंढते हैं. But he acts like a godly man. लेकिन ये धर्मी पुरुष जैसा अभिनय करता है. Once his money is finished, जब उसका पैसा खत्म हो जाता है nobody takes care of, और कोई भी उसको देखभाल नहीं करते हैं, will return to house. तो वो घर वापस आ जाते हैं. I ask, why are you acting like this? मैंने पूछा कि आप इस तरह से क्यों अभिनय करते हैं? Why you run away from house? क्यों आप घर से भाग गए? You leave your children, your wife and run away. आपके बच्चे और आपके पत्नी को छोड़ के भाग गए. But still you read Bible and go to church. What is this? लेकिन फिर भी आप बाइबल पढ़ते हैं और कलीसिया में जाते हैं. ये क्या है? You please repent. कृपया आप पश्चाताप कीजिए. And he says, my dear darling, that's not the case. उसके बाद वो कहता है, मेरे प्रिय डार्लिंग, बात वो नहीं है. Then I asked, what is that? तो मैंने पूछा, फिर वो क्या है? And he told that is the running away anointing is coming upon me. और उसने उससे कहा कि जब ये भाग जाने की अभिषेक मेरे पर आता है, The moment it comes, I'll run away from house. अभिषेक आते ही क्षण में मैं घर से भाग जाता हूँ. He is not running away anointing. It's a devilish anointing. ये भाग जाने की अभिषेक नहीं है, ये शैतान का अभिषेक है. Your evil mind, आपके बुरे मन, your evil desires. आपके बुरी इच्छाएं. People are saying laughing anointing. लोग कहते हैं हंसने का अभिषेक है. Some other people are mixing preaching. लोग की मिलावट की प्रचार. Another person says, rolling anointing in the church. और दूसरे लोग कहते हैं कलीसिया में लुढ़कनी अभिषेक आता है. Rolling from this end to that end, rolling here, rolling. इस कोने से उस कोने तक लुढ़क रहे हैं और लुढ़क रहे हैं. I asked why these people are rolling. मैंने पूछा ये लोग क्यों लुढ़क रहे हैं? We get always every Sunday rolling anointing. आप जानते हैं क्या, हम हर रविवार को लुढ़कने अभिषेक पाते हैं. Some people they're falling anointing. और कितने लोग गिरने वाली अभिषेक को पाते हैं. एक लड़के ने कहा हमारी कलीसिया बहुत अजीब है. तो मैंने पूछा क्या बात है? तो उसने कहा वचन कम रहता है. जैसे ही लोग कलीसिया में आते हैं और पासवान आते ही अभिषेक कह के चिल्लाते हैं तो सब विश्वासी इधर से उधर लुढ़कते हैं. थोड़ी देर के बाद भेंट डाल के चले जाते हैं. You have come to learn something. आप यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं. Simply in the name of anointing, don't deceive people. अभिषेक के नाम से आप लोगों को धोखा ना दे. Simply saying in the name of anointing and deceiving people and doing your works not instead of God's work. और वैसे ही अभिषेक का नाम लेके लोगों को धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर के काम के बदले में अपना काम कर रहे हैं. Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, some people say laughing anointing. Once they step into the church, everybody will be laughing, laughing, laughing.
जैसे ही कलीसिया में अपना पैर रखते हैं तो सब लोग हंसते रहते हैं और हंसते रहते Some other हैं। people say jumping anointing. The moment the pastor says something, they will be jumping, jumping, jumping till the end of the service. लोग कहते हैं कूदने की अभिषेक है। जब पासवान कुछ बोलते हैं क्षण में ही कूदते रहते हैं और कूदते रहते हैं आराधना खत्म होते My तक। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और the बहनों, name of fashion, Satan is deceiving the world. फैशन के नाम लेके शैतान दुनिया को धोखा दे रहा है। But now the preachers, some of them, those who are compromised with the world, using the anointing name and deceiving the church. लेकिन आजकल कुछ प्रचारक जो संसार के साथ समझौता करते हैं अभिषेक के नाम को इस्तेमाल करके कलीसिया को धोखा दे रहे हैं। The Satan always makes duplicates everything what God does. जो कार्य परमेश्वर करता है शैतान हमेशा उसके नकली बनाता है। ఈ లోకంలో ఏ ఒరిజినల్ ఉన్నా దాని పక్కనే ఉంటుంది చెప్పండి. Anywhere you go, any product you take, somebody will make duplicate of it. जहाँ कहीं आप जाओ जो भी उत्पाद को आप ले लो उसकी नकली भी कोई और बनाया होगा। You go to shop, you have to check for the genuine thing. जब आप दुकान में जाएंगे तो आपको असली चीज ढूंढने होंगे। Duplicate is so many. नकली बहुत सारे हैं। It is hard to find genuine thing. असली चीज पाना बहुत कठिन है। Real anointing is different and fake anointing is different. वास्तविक अभिषेक अलग है और नकली अभिषेक अलग है। One more person said money anointing. और एक व्यक्ति कहा कि पैसों का अभिषेक। As what is that? मैंने पूछा वो क्या है? You know, I got money anointing. Dear brothers and sisters, I got money anointing, he is saying. वो कहता है पैसों की अभिषेक मैंने पाया हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों पैसों की अभिषेक मैंने पाया हूँ। Now everybody, whatever you have in your pockets, you know, God is saying, give it to me. इसीलिए अब आपके जेब में जो कुछ भी है परमेश्वर कह रहा है आप मुझे दीजिए। That is the money anointing. ये पैसों की अभिषेक He है। is also, you know, fooling people. ये भी लोगों को मूर्ख बनाने का है। Some people are saying water anointing. और कितने लोग कहते हैं पानी की अभिषेक है। Bucket full of water and throw water on everyone. बाल्टी में पानी भरिए और सबके पर डाल दीजिए। That is not there in the Bible. ये बाइबल में नहीं है। Jesus baptized in the water. That doesn't mean everyone should be sprinkled with the water. यीशु पानी में बपतिस्मा लिया इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके पर पानी It is छिड़के। not there. ये बाइबल में नहीं है। Should we follow that? हम इसका क्यों अनुसरण करना चाहिए? विश्वासी कैसे भरमाए जाते हैं? इस तरह की झूठी शिक्षा के वजह से भरमाए जाते हैं। मत्ती 24 अध्याय का 4 से लेकर 14 में इसके बारे में लिखा गया है। आजकल जिसके मन में जैसे चाहे वैसे प्रचार कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि ठीक है जाने दो, लेकिन सच्चाई जान के ऐसे चुप बैठे रहना नहीं चाहिए। उसका सामना करके सच्चाई क्या है बता देना चाहिए। And some other will say, God has given a special anointing. If I say and stand, everybody will fall. Before they fall, He'll tune their mind. कुछ और लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे विशेष अभिषेक दिया है, अगर मैं खड़े होके कुछ बोलूं तो सब लोग गिर जाएंगे। उनके गिरने से पहले वो उनका मन को घुमा देगा। Believers will be thinking, if I don't fall, I am not touched by the power of God, so I have some sin, so it is better to fall. Come on. विश्वासी लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं गिर ना जाऊं तो परमेश्वर की शक्ति मुझे स्पर्श नहीं किया है और मुझ में पाप है, इसीलिए मेरे गिर जाने में ही भला है, तो आओ गिरते हैं। एक समय में एक राजा के पास 2 दर्जी आए और राजा से कहने लगे, देखो राजा, ये कपड़ा सिर्फ धर्मी लोगों को ही दिखाई देता है। तो राजा ने कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बात पर दर्जियों ने फिर से कहा, ध्यान से सुनो राजा, ये कपड़ा सिर्फ और सिर्फ जो भक्ति के मार्ग पे चलते हैं और धर्मी हैं, उन्हीं को ही दिखाई देता है। तो ठीक उस समय में रानी आ रही थी। तो राजा ने सोचा कि रानी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए दर्जियों से कहा, हाँ मुझे दिखाई देता है। जब रानी आई तो राजा ने रानी से पूछने के लिए दर्जियों से कहा। रानी भी सोचने लगी, यदि मैं कहूँ कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो राजा सोचेंगे कि मैं पापी हूँ, इसीलिए रानी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। जब मंत्री आए तो मंत्री से भी पूछा गया। इस बात पे मंत्री ने सोचा कि यदि मैं कहूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो राजा सोचेंगे कि मैं अविश्वासी हूँ और अपने राज्य से मुझे निकाल देंगे, इसीलिए इन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दिया। और वहाँ पे जो सिपाही खड़े थे उनसे भी राजा ने दर्जियों से पूछवाया, तो सिपाहियों भी हाँ में हाँ मिला दिए और कहे कि ये तो सबसे बेहतरीन कपड़ा है। तब राजा अपने आप सोचने लगे कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये सबको कैसे दिखाई दिया। उसके बाद दर्जियों ने राजा से पूछा, क्या हम इस कपड़े से कुछ सिलवा दें? तब राजा ने पूछा, इसकी कीमत कितनी होगी? तो दर्जियों ने कुछ ज्यादा ही बताई और राजा से 1000 सिक्का लिए। और दर्जियों ने राजा से कहे, जब आप ये पहन के जाएंगे तो आपका राज्य विस्तार होगी, आप महान राजा बनेंगे। उसी दिन से राजा उत्साहित हो रहे थे कि मैं कब पहनूंगा। वो
वो दिन आ ही गया जब दर्जियों ने आके राजा से कहे, ये लो राजा आपका नया कपड़ा। दर्जियों ने कहा, राजा आपके कपड़े उतार दो और ये धार्मिक कपड़ा पहन लो। तब राजा ने, जो वास्तव में कपड़ा था ही नहीं, पहन लिया और सबसे पूछने लगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो सब लोग कहने लगे, ये कपड़े तो सिर्फ आपको ही बहुत जांच रहा है। दर्जियों ने राजा से कहा, आओ राजा अपने परिवार समेत हाथी पे बैठो और पूरे राज्यों में एक बार घूम के आओ। राजा तैयार होने के बाद फिर से रानी से पूछा कि मैं कैसे लग रहा हूँ। तो रानी ने कहा, कितने अच्छे लग रहे हो। राजा निकलने से पहले ऐलान किया गया था कि जो भी अपने आंख बंद करेगा या राजा को देख नहीं पाएगा, वो पापी गिना जाएगा और बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। अब राजा निकल गए, ऐलान हो गया और लोग राजा को देखने की मजबूरी से देख रहे थे और बेवस्त्र राजा को देख के हैरान होके चुप रह गए। इसी बीच राजा खुद को शर्म से देख रहे थे और बीच बीच में लोगों से पूछ रहे थे। तो लोग बढ़िया है राजा कह रहे थे। भीड़ में से एक छोटा बच्चा ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे भी राजा को देखना है और उनके नए कपड़े को देखना है। तो उस पिता ने अपने लड़के को कंधों पे बैठा के राजा को देखने के लिए कहा। जैसे ही लड़के ने बेवस्त्र राजा को देखा, वो जोर से हवा करके कहने लगा। तब राजा ने देखा कि वो कौन है। You don't have dress in it. राजा आपके कपड़े नहीं हैं। Oh king, you don't have dress. राजा आपके कपड़े नहीं हैं। लड़का चिल्लाने लगा, राजा शर्म की बात है कि आप कपड़े ही नहीं पहने हैं। लड़के की बात सुन के राजा कांप उठे और उनके पसीने छूट गए। राजा समझ गए कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं और उन्हें पता था कि छोटे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं और उनके आंखों में पाप नहीं होता है। राजा ने उस छोटे बच्चे से कहा, फिर से देख के कहो। तो वो बच्चा कहा, मैंने देखा आप कुछ नहीं पहने हो। तब राजा डर के मारे बिना पीछे मुड़े महल की ओर भाग गया और सिपाहियों को कहा उस दर्जियों को पकड़ के लाने के लिए। लेकिन तब तक उस दर्जियों ने सीमा पार हो चुके थे। देखो परमेश्वर के लोग, राजा भी बेवकूफ बन गए। झूठ को सच बताना और सच को झूठ बताने का दिन आ ही गए हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो श्रापित You हो। have to continue the apostles' foundation. Don't put a new foundation, brother. आप प्रेरितों के नींव में ही जारी रखना है, नया नींव को ना डाले मेरे भाइयों। I mean, if you're getting something, आप में से कितने लोग समझ रहे हैं? the foundation which is already laid with the word of God. जो नींव परमेश्वर के वचन के द्वारा डाली गई है, We have to follow the same foundation, not the new foundation. हम उसी नींव की अनुसरण करना है, ना कि नया नींव को। Nowadays, no preacher can put a new foundation. आजकल कोई भी प्रचारक नया नींव को नहीं डाल सकता। No. नहीं, The angel comes, don't allow यहाँ that. तक कि स्वर्गदूत भी अगर आके करना चाहेंगे तो उसे आप इजाजत मत दें। This is already, the foundation is done. नींव पहले से डाल चुके हैं, We have to follow the same foundation. We हमको उसी नींव की अनुसरण करना है। have to build our spiritual life on the foundation which God has laid the foundation through the apostles in the book of Acts. हम हमारा आत्मिक जीवन उस नींव के पर बनाना है जो नींव परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा डाला है, प्रेरितों के काम के पुस्तक में। We will not be misled by anybody. तब हम किसी और के द्वारा बहकाए ना जाएंगे। This word will never change. Heaven and earth may pass away. The word of God will never pass away. ये वचन कभी ना बदलेगी। स्वर्ग और पृथ्वी टल जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन कभी ना टलेगी। Matthew 24 verse 35. मत्ती 24 अध्याय का 35 पद, Mark 13 verse 31. मरकुस 13 अध्याय का 31 पद, Psalms 146 verse 7. भजन संहिता 146 का 7 पद। Word of God will never pass away. परमेश्वर की वचन कभी ना टलेगी, It will stay forever. ये अनंत काल तक 1 रहेगी। Corinthians chapter 7 verse 31. पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 31 पद, John chapter 2 verse 17. पहला यूना 2 अध्याय का 17 पद, Hebrews chapter 6 verse 18. इब्रानियों 6 अध्याय का 18 पद। Word of God will stay forever. परमेश्वर की वचन अनंत काल तक बनी रहेगी। Let us build our spiritual life on the right foundation, not on a wrong foundation. आए हम हमारा आत्मिक जीवन को सही नींव के पर बनाएं, गलत नींव के पर नहीं। Let us follow what the Bible says. बाइबल क्या कहती है, आए हम उसकी अनुसरण करें। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, let's not be deceived by fake things. आप नकली चीजों के द्वारा धोखा ना खाएं। Let's look into the right word सत्य वचन की ओर देखें, and follow the right real anointing. सही और वास्तविक अभिषेक की अनुसरण करें। Filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में भर जाइए। How many will take a decision today कितने लोग आज निर्णय लेंगे, and follow the word of God? मैं परमेश्वर के वचन की अनुसरण करूंगा। Pure righteous word of God. वो शुद्ध और धर्मी परमेश्वर की वचन, Right word of God.
परमेश्वर के सत्य वचन को। Those people put one hand on your chest, one hand to the Lord Jesus. एक हाथ अपने छाती में और एक हाथ ऊपर प्रभु यीशु की ओर उठाएं। Pray loudly. जोर से प्रार्थना कीजिए। Father, touch my life. पिता मेरे जीवन को छू लीजिए। Anoint me, Jesus. अभिषेक कीजिए यीशु। Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा में भर Give दीजिए। me the gifts of the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा का वरदानों को दीजिए। Let me not live against you, Lord. लेकिन मुझे आपके विरोध में जीने ना दीजिए प्रभु। Let me not go away from you. मुझे आपके पास से दूर ना जाने दीजिए। Let me never disorder God's word. मुझे परमेश्वर के वचन के क्रमों को बिगाड़ने ना दें। Be in a right track. सही मार्ग में मुझे रखिए। Be in a right way. सही मार्ग में मेरी अगुवाई कीजिए। Anoint me, Holy Spirit of God. मुझे अभिषेक कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। Flow through me, Jesus. यीशु मुझ में प्रवाहित हो जाइए। Touch your people, my Jesus. आपके लोगों को छू लीजिए मेरे यीशु। Pour out your Holy Spirit, my God. पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए मेरे परमेश्वर। Your people in the name of Jesus. यीशु के नाम में आपके लोगों को छू लीजिए। Touch them, Lord. उनको छू लीजिए प्रभु। Touch them, Lord. उनको छू लीजिए प्रभु। Set them free. उन्हें स्वतंत्र कीजिए। Anoint your people, Father. आपके लोगों को अभिषेक कीजिए। Everyone be touched. सब लोग स्पर्श किए जाए। Financial blessings. आर्थिक आशीर्वाद। Spiritual blessings. आत्मिक आशीषें। Good health. अच्छे स्वास्थ्य। Sound mind. अच्छा मन। All these things are mine in Jesus' name. ये सारे चीज मेरे हैं यीशु के नाम में। Thank you, Lord, for blessing me. धन्यवाद प्रभु मुझे आशीष देने के लिए। Thank you, Lord, for blessing me. In धन्यवाद प्रभु मुझे आशीष देने के लिए। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगता हूँ। Amen. आमेन।